خوش شہزادہ۔ شہر سے بہت آگے ایک اونچی مینار پر خوش شہزادے کا ایک پتلا رکھا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک باریک سونے کی پرتوں سے آراستہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 چمکدار نیلم تھے اور اس کی تلوار کے ہتھے پر بڑا سا لال چمکدار مانک تھا۔ ایک رات ایک چھوٹی چڑیا شہر کے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور اسے وہ شب خوش شہزادے کے قدموں میں بتانی تھی۔ وہ سونے ہی والی تھی کہ اس پر پانی کی ایک بوند گری۔ اسے حیرانی ہوئی کیونکہ آسمان میں ابھی تک کوئی بادل نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک دوسری پانی کی بوند اس پر آ کر گری۔ وہ چڑیا سونے کے لیے دوسری جگہ ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں ایک تیسری بوند پھر اس پر آ کر گر گئی۔ چڑیا نے اوپر گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ پانی خوش شہزادے کی آنکھوں سے بہ رہا ہے۔ اس چڑیا کو اس پر بہت ترس آیا اور اس نے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں بھی ایک انسان تھا اور ایک شاندار محل میں رہتا تھا۔ میں بہت رحم دل تھا۔ میرا دل بہت سچا تھا۔ میری سلطنت میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور اسی لیے میرے درباری مجھے خوش شہزادہ کہتے تھے۔ میری موت کے بعد مجھے ایک اونچے کھمبے پر بٹھایا گیا ہے۔ میرا دل سیسے سے بنا ہوا ہے، پھر بھی جب بھی میں میری ریاست کی پریشانی اور بدحالی دیکھتا ہوں تو میرا دل رونے لگتا ہے۔ آپ بہت رحم دل ہیں، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بہت دور ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں ایک درزی کا چھوٹا بچہ بیمار ہے۔ وہ رو رہا ہے کیونکہ اس کی ماں اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ وہ بہت غریب ہے اور وہ اس چھوٹے بچے کو قریب سے بہنے والی ندی کا پانی دے رہی ہے، لیکن اس بچے کا پیٹ کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ اب آپ یہاں سے ان کی مدد کیسے کریں گے؟ میری تلوار کے منٹ سے مانک لے لو اور اس غریب عورت کو دے کر آؤ۔ اس چھوٹی چڑیا نے شہزادے کا حکم مانا اور اس کے بعد اس نے درزی کی جھوپڑی کی طرف پرواز کی۔ وہ اس کے گھر پہنچی اور ٹیبل پر مانک رکھ دیا۔ اس غریب بچے کو بیماری سے تھوڑی راحت ملے، اس لیے وہ اس کے قریب تھوڑی پھڑپھڑائی بھی۔ جیسے ہی چڑیا واپس اڑی، وہ غریب ماں چمکدار مانک لینے کے لیے اٹھ بیٹھی۔ ماں اور بچہ دونوں بہت خوش تھے۔ جب چڑیا واپس لوٹ آئی تب شہزادے نے کہا، مجھے ایک مصنف دکھائی دیا ہے۔ اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے اور وہ بہت بھوکا ہے، پھر بھی وہ کہانی لکھ رہا ہے، کیونکہ اگر اس نے وہ کہانی ادھوری چھوڑی تو اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ پیاری چڑیا، برائے مہربانی تم میری آنکھوں میں سے ایک نیلم نکال کر اس کی مدد کر سکو گی کیا؟ نہیں شہزادے، میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہ میرا حکم ہے پیاری چڑیا۔ اس چڑیا کو شہزادے کی آنکھوں سے نیلم نکالنے کی قطعی خواہش نہیں تھی، پھر بھی اس نے غیر ارادتاً اس رحم دل شہزادے کا حکم مانا۔ اسی لیے وہ چڑیا ایک بار پھر، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی، ایک اور پریشان حال کی زندگی میں اس کی کچھ مدد کے لیے پرواز کر گئی اور اس نے وہ نیلم اس مصنف کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ چڑیا نے دیکھا اتنی ٹھنڈ اور بہت زیادہ بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ مصنف بے ہوش ہو گیا ہے۔ تاہم چڑیا نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور اس نے مصنف کے قریب ہی رکھے آگ کی جگہ پر ڈال دی اور آگ روشن کی۔ جیسے ہی چڑیا وہاں سے دور گئی، مصنف کو جلتی ہوئی آگ سے گرمی حاصل ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹیبل پر چمکدار نیلم ہے، جسے حاصل کر کے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے رب سے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ پھر سے چھوٹی چڑیا پرواز کر گئی اور پھر شہزادے نے اس سے کہا، مجھے ایک چھوٹی لڑکی دکھ رہی ہے، اس کے پاس کی سبھی چیزیں نالے میں گر گئی ہیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے اور کانپ رہی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ گئی تو اس کے والد اسے بہت پیٹیں گے۔ شہزادے، اسے دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پیاری چڑیا، میرے پاس ایک اور آنکھ بچی ہوئی ہے، برائے مہربانی اس بیچاری لڑکی کو دے دو۔ نہیں شہزادے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اب اگر میں نے آپ کا دوسرا نیلم بھی حاصل کیا تو آپ اندھے ہو جائیں گے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں پیاری چڑیا، کسی کی مدد کرنے کی یہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔
اور تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو اور اپنے سفر پر نکل سکتی ہو۔ شہزادے کے حکم کی وجہ سے اس چڑیا نے بنا خواہش کے ہی خوش شہزادے کی آنکھوں کا دوسرا نیلم بھی نکال لیا، اور اب شہزادہ پوری طرح سے اندھا ہو چکا تھا۔ قربانی کی ایسی شاندار پہچان رکھنے والے اس پتلے کے لیے چڑیا کا یہ آخری کام تھا، اور بہت تسلی سے چڑیا نے اس نیلم کو نکال کر اس لڑکی کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور پھر سے شہزادے کے پاس لوٹ آئی، اور اس نے کہا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی شہزادے، میں یہاں میری آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گی، اسی وقت سے میں آپ کی آنکھیں بنوں گی۔ اب وہ چڑیا بہت سارے پریشان رہنے والے لوگوں کا عجیب سے دکھنے والے مجسمے کو ہر روز خبر دینے لگی۔ اس خوش شہزادے کے حکم سے چڑیا نے اس مجسمے سے سونے کی پرتیں نکالنا شروع کری، اور غریب لوگوں کی مدد کے لیے ان تمام پرتوں کو ان لوگوں میں بانٹ دیا تاکہ وہ ایک بہترین زندگی جی سکے۔ اب مجسمہ بدصورت اور کالا بن چکا تھا، اب اس کے اوپر کوئی سونا نہیں بچا تھا۔ جلدی ہی سردی کا موسم آ گیا، اور اس چڑیا کو سردی کی وجہ سے بہت ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ اتنی ٹھنڈ تھی کہ وہ چڑیا مرنے والی تھی۔ اس نے خوش شہزادے کی جانب چھلانگ لگائی اور اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ میں آپ سے آخری بار الوداع کہنا چاہتی ہوں میرے شہزادے۔ اچھا، آخر تم نے اپنے اگلے سفر کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میری چھوٹی دوست، مجھے تم پر فخر ہے۔ سنبھل کر جاؤ میری چھوٹی دوست، سنبھل کر جاؤ۔ نہیں شہزادے، میں اب اپنی موت کا آخری سفر کرنے والی ہوں۔ میری موت تو برحق ہے، اسی لیے ایک دن میں نے آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ میں خوش ہوں اور بہت سکون میں ہوں۔ جس مجسمے سے چڑیا کو محبت تھی اور لگاؤ تھا، اسی مجسمے کے قدموں کی طرف چڑیا پھڑپھڑاتے ہوئے گئی۔ وہ شہزادہ بھی بہت وقت تک روتا رہا۔ اب اس کے جسم میں جو سیسے کا دل تھا وہ کالا سا ہو گیا تھا، اور وہ پھوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں کے میئر نے وہ پتلا نیچے کھینچنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ خوبصورت نہیں رہا تھا اور اس کا کوئی بھی استعمال نہیں تھا۔ لیکن ٹوٹا ہوا دل بھٹی میں پگھلا ہی نہیں، اسی لیے اسے دور پھینک دیا گیا، اور وہ ایک کچرے کے ڈھیر پر آ کر گر گیا، جہاں معصوم چڑیا بھی مری ہوئی پڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر رب نے اس کے ذریعے بنائے فرشتوں کو ان کا امتحان لینے کے لیے وہاں بھیجنا چاہا، اور اسی لیے انہوں نے کہا، زمین پر موجود میرے ذریعے بنائی گئی 2 بیش قیمتی چیزیں مجھے لا کر دو۔ جی اللہ۔ اب وہ جنت کے فرشتے اس کچرے کے ڈھیر کے قریب آئے جہاں معصوم چڑیا مری پڑی تھی، اور خوش شہزادے کا دل بھی تھا۔ ان فرشتوں نے انہیں اوپر اٹھا لیا، اور اب وہاں پر صرف اور صرف کچرا باقی تھا۔ او آسمانی روشنی کے مالک، آپ کی زمین پر ہمیں یہ 2 بیش قیمتی چیزیں مل گئی ہیں۔ خوش راجکمار کا سیسے کا دل اور مری ہوئی چڑیا، ان 2 انمول چیزوں کو چننے کے لیے رب نے فرشتوں کی بہت تعریف کی۔ اب یہ چڑیا یہاں میرے باغیچے میں رہے گی، اور راجکمار بھی یہیں رہے گا۔ وہ میری اس خوبصورت جنت کا مزہ لیں گے۔ اب جب کبھی چڑیا اور خوش شہزادہ دنیا میں تکلیف دیکھیں گے، تب ان کے آنسو آسمان سے نیچے گریں گے، اور انہی کی بدولت بادلوں سے نرم بارش ہوگی۔ کہانی ختم ہوئی۔ قدرت کی شرائط۔ ہزاروں سال پہلے جب سب کا رب اپنی مخلوق کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور اب تک اس نے انسان کو نہیں بنایا تھا، تب خرگوش سب سے ہوشیار مخلوق میں سے ایک تھا۔ ایک دن خرگوش رب سے ملنے اس کے جنگل میں بسے ہوئے محل میں آ گیا۔ تمہیں محل میں دیکھ کے خوشی ہوئی، تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ او میرے پیارے رب العالمین، اس پورے جہان اور تمام مخلوق پر آپ ہی کی حکومت ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کس طرح کی مدد؟ بس ایک خواہش ہے، مجھے عقل مند اور شاطر بنا دیجیے۔ واہ واہ واہ، سب دولت مند بننا چاہتے ہیں، لیکن تم شاطر بننا چاہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ میں جنگل کے سارے جانوروں سے زیادہ ہوشیار بننا چاہتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنا ہنر مجھے دکھانا ہوگا۔
क्योंकि मैं होशियार और अक्लमंद दूसरी मखलूक बनाने की सोच रहा था। अगर तुमने खुद को साबित किया तो मैं इंसान बनाने का अपना इरादा तर्क कर दूंगा। कहो क्या कहते हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम मेरी खातिर 5 नीले परिंदे, 5 सफेद तितलियां और तुम्हारे जिस्म जितनी मधुमक्खी लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगा, मैं हारूंगा नहीं। इसके बाद जंगल में खरगोश थका हुआ लौट कर आता है। वो तालाब के करीब जाकर बैठ जाता है। तमाम जानवर आकर तालाब का पानी पीने लगते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद 5 नीले पंछी भी तालाब का पानी पीने के लिए वहां आते हैं और फिर वो खेलने कूदने लग जाते हैं। आज मुझे मेरी खूबियां पता चलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये सच नहीं है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। नहीं, वो उस कदर नहीं है। 5 नीले पंछी उसके करीब आते हैं। अरे खरगोश, तुम क्या कह रहे हो? बताओ आखिर क्या बात है? अरे कुछ नहीं, नामुमकिन है। अरे हमें बताओ तो क्या हुआ? ओह, किसी ने मुझे कहा था कि तुम लोग मेरे साथ आओगे, लेकिन मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है। तुम सफर से थकोगे। तुम मजाक कर रहे हो? हम तो हमेशा ही दूर तक उड़ते हैं। उड़ने से हमें थकान नहीं होती है। हम तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकते हैं। हम कभी नहीं थकते। 5 नीले पंछी हंसते हैं और खरगोश के इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। बहुत अच्छे। अब तालाब के करीब 5 सफेद तितलियां आती हैं। वो फूलों से शहद पीने लगती हैं। अरे वाह, मैंने इतनी खूबसूरत तितलियां कभी नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगी। ये तो नामुमकिन होगा। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? 5 सफेद तितलियां उसके करीब आती हैं। अरे खरगोश, तुम क्या कह रहे हो? क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। हमें बताओ तो क्या बात है? किसी ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन मुझे पता है ये नामुमकिन है। तुम सफर से थक जाओगी। तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना? हम कभी नहीं थकते। हम हमेशा ही दूर का सफर करते हैं। हम कभी नहीं थकते हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं। 5 सफेद तितलियां हंसकर खरगोश के इर्द गिर्द रक्स करने लगती हैं। ओ, ये तो बहुत बढ़िया है। अब एक बड़ी मधुमक्खी आकर फूलों से शहद पीने लगती है। वाह, कितनी खूबसूरत मधुमक्खी है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगी। ये तो नामुमकिन है। मैं पागल हूँ। मधुमक्खी उसके करीब जाती है। ओह खरगोश, क्या बात है? तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, ये तो नामुमकिन है। मुझे बताओ तो आखिर क्या बात है? किसी ने कहा था कि तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन ये तो नामुमकिन है। तुम सफर से थक जाओगी। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी नहीं थकती। मैं हमेशा दूर तक उड़ सकती हूँ। बहुत अच्छे, चलो हम सब चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ 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 चलो चलो। लेकिन ठहरो, तुमने हमें बताया नहीं कहाँ जा रही हैं? वो एक बड़ा खुशनुमा लम्हा है। अच्छा है या बुरा? ओह बेशक, अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। कुदरत के महल में खरगोश, 5 नीले पंछी, 5 सफेद तितलियां और बड़ी सी मधुमक्खी कुदरत के सामने हाजिर होते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुदरत 5 पंछी, 5 तितलियां और मधुमक्खी की जानिब गौर करते हैं। तो तुम इन सबको हमरा ले ही आए। क्या अब आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं?
अगर मैं तुम्हें और होशियार बना दूं तो वो एक बड़ी गलती होगी। लेकिन कैसे? क्योंकि तुम पहले से ही बहुत अक्लमंद हो। अच्छा, तो क्या मैं जंगल के बाकी जानवरों से ज्यादा अक्लमंद हूँ? तुम हमेशा से ही अक्लमंद थे, लेकिन तुम जानते नहीं थे। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? वो तमाम एक साथ बात करने लगते हैं और खरगोश अपने आप में खुश होकर महल से रवाना हो जाता है। कहानी खत्म हुई। टॉम थॉम की कहानी। एक दफा एक बहुत ज़ईफ भिखारी घनी जंगल में भटक रहा था। एक रोज जब उसके पैरों में बहुत शदीद दर्द होने लगा तो उसने गोगो नाम के एक आंख वाले आर्क के दरवाजे पर दस्तक दी और खाने के लिए इल्तिजा की। आर्क गोगो और उसकी बेगम गीगी ने उस अजनबी का अपनी गुफा में इस्तकबाल किया। जब उसकी बेगम ने एक छोटी सी रकाबी में कुछ रोटियां रखी तो उन्होंने महसूस किया कि उनका मेहमान कोई और नहीं बल्कि मर्लिन था, जो कि एक बहुत कामयाब और सबसे जबरदस्त जादूगर था। आलीशान जादूगर मर्लिन, मेहरबानी करके छोटी सी कोशिश कबूल करें। आप दोनों बेहद नरम दिल और सच्चे हैं। मैं खुश हूँ, लिहाजा मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको कुछ पेश करना चाहता हूँ। उसने 2 बार अपनी उंगलियों से चुटकियां बजाईं और उसके सर के ऊपर बुलबुले नजर आने लगे जिनमें तस्वीरें थीं। अला सकूदश, बहुत सारा चमकता सोना, चमचमाती रोशन हीरे की खाने। मुझे बताएं, आपकी क्या ख्वाहिश है? अगर मेरे एक बेटा होता तो मैं दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान होती, फिर चाहे वो मेरे शौहर के अंगूठे से भी बड़ा नहीं होता तो भी मुझे बेहद इत्मीनान होता। गीगी ने अपने अंगूठे को बहुत ही उम्मीद के साथ देखा। एक आर्क का बेटा, वो भी किसी अंगूठे से बड़ा ना हो, ऐसी फिक्र से ही मर्लिन बहुत हैरत ज़दा हुआ और इसीलिए उसने उस बेचारी मासूम औरत की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। और फिर वहाँ फौरन ही गीगी का अंगूठा थामकर एक आर्क का छोटा सा लड़का आया। नए आर्क वालिदैन को देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने मर्लिन को बहुत बहुत शुक्राने अदा किए। और इसके फौरन बाद जादूगर अपने प्यारे मेजबानों के घर से रवाना हो गया। टॉम कभी भी अपने वालिद के अंगूठे से बड़ा नहीं हुआ, इसीलिए हर कोई उसे अंगूठा टॉम कहता था। गोगो और गीगी ने अपने छोटे बेटे को खोने के डर से अपनी नजरों से कभी भी ओझल नहीं होने दिया। उसके रहने के लिए एक छोटा सा खिलौनों का सा घर तैयार किया और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो बहुत ज्यादा शातिर चालाक लड़का बना। एक दिन गोगो जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, काश हमारे करीब कोई तांगा चलाने वाला होता। अब्बा जान, मैं तांगा चला सकता हूँ, बिल्कुल तन्हा। गोगो हंसा और उसने जवाब दिया, बेहतर है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब वक्त आया, टॉम ने अपनी माँ से घोड़े को गाड़ी से जोड़ने के लिए कहा और फिर वो घोड़े के कान में जाकर बैठ गया और उसे रास्ता बताने लगा। तो घोड़ा घने जंगलों से सही राहों पर चलने लगा और जब वो एक मोड़ पर मुड़े तो टॉम ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता। उसकी ये बात 2 लोगों ने सुनी। उनमें से एक ने घोड़े की तरफ देखा और आवाज सुनी, लेकिन उन्हें सवार नहीं दिखा। कितने हैरानी वाली बात है, एक गाड़ी आगे चली जा रही है और घुड़सवार घोड़े से बात कर रहा है, मगर घुड़सवार नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत फिक्रमंदी से गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें हैरानी हुई कि ये कैसा अजीब और गरीब जादू है। गाड़ी सीधे जंगल में चली गई, ठीक उसी जगह पर जहाँ गोगो काम कर रहा था। तब टॉम ने अपने वालिद को देखकर कहा, क्या आपने गौर किया अब्बा जान, मैं गाड़ी लेकर हाजिर हुआ हूँ। गोगो ने अपने बेटे को थामा और उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। इसी दौरान वो दोनों अजनबी ऊपर की जानिब देख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्योंकि वो हैरत में थे। फिर उनमें से एक ने दूसरे का कंधा जोर से पकड़ा और दोनों लालच के साथ बोले,
हमें इस छोटे से आर्क को लेकर भाग जाना चाहिए। हमारी किस्मत बदल देगा। दुनिया भर के लोग छोटे से इंसान को देखने के पैसे देंगे। हम दौलतमंद हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने जल्दबाजी में टहनियों और पत्तियों से ढककर अपने आप को तब्दील किया और गोगो जंगल की करीबी रास्ते से जा रहा था। तब उन्होंने छोटे टॉम के मुंह पर हाथ रखकर उसे थाम लिया और तेजी से उसे अपनी झोली के अंदर दबा दिया और ऐसे ही वो एक जंगल के बड़े लंबे दरख्तों के सायों में दूर निकल गए। अब्बा जान, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। टॉम सदाएं लगा रहा था, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुन सकता था। 2 अजनबी अगवागरों ने शाम होने तक अपना सफर जारी रखा और टॉम अपनी आवाज में तेजी के साथ उनसे दरियाफ्त करने लगा। क्या आप मुझे नीचे उतारेंगे? मुझे बाथरूम के लिए जाना है। तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ शातिर बच्चे। हमें मालूम है कि तुम भागना चाहते हो ना? नहीं जनाब, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मुझे डोरे से कस दीजिए। वो उस लड़के को एक धागे से बांधने के लिए राजी हो गए। एक छोर टॉम को बांधा और दूसरा उस आदमी के हाथ से बंधा था। उन्होंने उसे नीचे छोड़ दिया और उसे बाथरूम जाने की इजाजत दी। टॉम बड़े शातिर अंदाज में चूहे के बिल में घुस गया और अपने मजबूत दांतों से उस धागे को काट दिया। आदमियों ने बिल में डंडियां डाली, लेकिन ये सब तो बेकार था, क्योंकि टॉम बिल में रेंगकर अंदर की जानिब चला गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, वो बेचारे परेशान होने लगे और हार मानने पर मजबूर हो गए। लेकिन जरा देर बाद टॉम को पता चला कि अगवागर वहाँ से चले गए हैं, तो वो बिल से बाहर निकल आया और जब वो चल रहा था तो उसने 2 लुटेरों को अपने वालिद गोगो को लूटने के बारे में एक साथ बात करते हुए सुना। तब वो चालाकी से बाहर आया और उनकी सारी स्कीम खराब कर दी। मैं आपको खबर दे सकता हूँ कि कैसे गुफा के दरवाजे से फिसलकर अंदर दाखिल हो सकता हूँ और फिर तिजोरी में सोना भी आपको दिला सकता हूँ। क्या कहते हैं आप? और आखिरकार तुम इस तरह हमारी मदद क्यों करोगे? इससे तुम्हारा क्या फायदा है टिंगू मियाँ? क्योंकि इस डकैती से मुझे भी तो हिस्सा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो फिर चलते हैं। लुटेरों ने टॉम को उनके सिर पर ले लिया और वो आगे चलने लगे। जैसे ही वो गोगो की गुफा के पास पहुँचे, टॉम गुफा के एक छोटी सी दरार से फिसलकर अंदर गया और उसने उसके लिए एक छोटी सी कुंडी खींचकर दरवाजा खोला, जिसे टॉम के वालिद ने खास तौर पर उसके लिए ही बनाया था। दोनों लुटेरे गुफा में दाखिल हुए। उनकी आंखें लालच से चमक रही थी और उन्होंने फिर से जांच की और इत्मीनान किया कि आर्क, शौहर और बीवी सो रहे हैं और फिर चुपके से खजाने के कमरे की तरफ चल पड़े। जैसे ही लुटेरों ने लालच से सोने को अपनी झोलियों में भरना शुरू किया, तभी टॉम ने खजाने के कमरे का दरवाजा खींचा और जोर से बंद कर दिया और लुटेरों को अंदर फंसा दिया और उसने आवाज लगाई, अब्बा जान यहाँ आए, मैंने डकैतों को पकड़ लिया है। गोगो और गीगी दोनों जाग गए। जैसे उन्होंने आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर एक हंसी दौड़ गई और वो अपने प्यारे बेटे की आवाज की जानिब भागे। मेरा छोटा टॉम वापस आ गया। पूरा खानदान फिर से आपस में मिल गया और साथ ही अपने सामान की हिफाजत करने के लिए इस मेहरबानी और खुशी से रोने लगे। गीगी ने तब अपने बेटे टॉम को उठाया और उसे चूम लिया। इतने में उन्होंने खजाने के कमरे के 2 लुटेरे चोरों को आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए सुना, अरे टॉम, अब आ जाओ। अरे दरवाजा खोलो, तुम्हारे खजाने का हिस्सा तुम्हारी राह तक रहा है। आहा। टॉम, हाँ वहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पूरा आर्क खानदान उन लुटेरों की इस बुरी हालत पर हंसने लगा। गोगो उन्हें सबक सिखाने के लिए गया और उन्हें बहुत जोर से पीटा। इतने में टॉम ने लुटेरों को अपनी जान के डर से रोते हुए सुना। जब गोगो आखिर में खजाने के कमरे से बाहर आया तो दोनों लुटेरे उसकी जबरदस्त मुट्ठी में उल्टे लटके हुए थे और टॉम को फख्र महसूस हुआ कि वो इतने अच्छे और आला वालिदैन की औलाद है।
हम तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव पेश करेंगे जिस तरह आर्क के साथ पेश करते हैं। मुझे तुम पर फक्र है मेरे बेटे। कहानी समाप्त। बगैर दांतों वाली बला। ये उस पुराने जमाने की दास्तान है जब इंसान कुत्तों पर यकीन नहीं करते थे और उन पर सिर्फ हिफाजत के लिए ही मुनहसर रहते थे। जब कुत्ते ज़ईफ हो जाते थे और किसी काम के नहीं रहते थे, तब इंसान उन्हें तन्हा ही जंगलों में छोड़ दिया करते थे रहने बसने के लिए। एक दफा एक किसान जिसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम लियोनार्डो था। जब वो ज़ईफ हो चुका और उसके दांत भी खत्म हो गए, जिस वजह से वो अब किसी को भी अपने दांतों से पकड़ नहीं सकता था। एक रोज किसान अपनी बेगम के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उसने उससे कहा, कल मैं लियोनार्डो को जंगल ले जाने वाला हूँ क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा। उसकी बेगम को कुत्ते पर रहम आया और उसने कहा, उसने इतने साल हमारी हिफाजत की है, हमारा वफादार बना रहा है, हमें उसे वो देना चाहिए जो उसने कमाया है। क्या? तुम जरा भी अक्लमंद नहीं हो। इसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, इसलिए दुनिया में ऐसा कोई चोर नहीं जो इससे खौफ खाए। इसने हमारी बहुत खिदमत की है, अब इसे अलविदा कहना चाहिए। उस बेचारे कुत्ते ने धूप में लेटे हुए किसान की तमाम बातें सुन ली। उसे बुरा लग रहा था कि कल उसका इस घर में आखिरी दिन होने वाला है। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था भेड़िया, जिससे मिलने के लिए वो अक्सर शाम में जंगल जाया करता था और अपनी किस्मत की गमज़दा दास्तानें उसे सुनाने लगता। भेड़िए ने कहा, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कुछ सोच रखा है। कल सुबह जल जब तुम्हारा मालिक अपनी बेगम के साथ घास का ढेर बनाने निकलेगा और उसके साथ अपना छोटा बच्चा भी ले जाएगा, इस दौरान घर में कोई नहीं होगा। जब उसके वालिदैन मसरूफ रहेंगे तो बच्चे को वो साये में बिठाएंगे। तुम वहीं मौजूद रहना उसकी हिफाजत करने के लिए। फिर मैं जंगल से बाहर निकलकर बच्चे को उठा लूंगा। तुम फौरन ही मेरा पीछा करना और बच्चे को मुझसे छीन लेना। मैं तुम्हें बच्चा लौटा दूंगा और तुम उसको उसके वालिदैन के पास ले जाना। फिर वो सोचेंगे कि तुमने ही बच्चे को बचाया है और वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुत्ते को ये तरकीब पसंद आई और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने तय किया। भेड़िए को अपना बच्चा उठाकर भागते हुए देखकर किसान चिल्लाने लगा, लेकिन जब लियोनार्डो वो बच्चे को वापस ले आया तो वो खुशी से झूम उठा और उसने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, आराम कर सकते हो। और उसने अपनी बीवी से कहा, घर जाओ, ज़ईफ लियोनार्डो के लिए सूप बनाओ ताकि उसे चबाना ना पड़े, और मेरा तकिया आना ताकि वो उस पर आराम कर सके। उस रोज के बाद ज़ईफ लियोनार्डो बहुत मजे में रहने लगा, जितना शायद उसने सोचा भी नहीं था। उसके बाद फौरन ही भेड़िया उससे मिलने आया और सब कुछ सही देखकर वो भी बहुत खुश हुआ। मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके बदले तुम अपनी आंखें बंद रखना जब मैं तुम्हारे मालिक की एक मोटी सी भेड़ उठा ले जाऊंगा। मैं वादा नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक का वफादार रहूंगा। मैं इस पे बिल्कुल रजामंद नहीं हूँ। भेड़िए को महसूस हुआ कि ज़ईफ कुत्ता उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए एक रात वो खामोशी के साथ आया और भेड़ को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वफादार लियोनार्डो ने किसान को भेड़िए के इरादे को बता दिया, इसीलिए किसान ने उसे जकड़ लिया और अनाज पीटने वाली संटी से उसे पीटने लगा। भेड़िए को वहां से भागना पड़ा, लेकिन वो कुत्ते से कहने लगा, अब तुम्हारी खैर नहीं धोखेबाज, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगली ही सुबह भेड़िए ने कुत्ते के करीब एक जंगली सुअर को भेजा जो उसे जंगल में बुलाने लगा। भेड़िए और कुत्ते के दरमियान जो करार हुआ था वो कुत्ते ने तोड़ा था, ऐसा भेड़िए को महसूस हुआ। ज़ईफ कुत्ते की तरफ से बात करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक 3 पैरों वाली बिल्ली के। जब दोनों वहाँ से बाहर निकले तब बेचारी बिल्ली लंगड़ा कर उसके साथ चलने लगी और दर्द की वजह से उसने पूंछ हवा में तान ली। भेड़िए और उसका दोस्त पहले से ही वहाँ पर पहुँचे हुए थे।
لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے دشمنوں کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے بلی کی تنی ہوئی دم کو تلوار سمجھ لیا، اور جب بیچاری بلی اپنے 3 پیروں پر اچھلنے لگی تو انہیں لگا کہ انہیں کوئی مارنے کے لیے پتھر اٹھا رہی ہے، اسی لیے وہ دونوں بہت ڈر گئے۔ جنگلی سور جھاڑی کے درمیان چھپ گیا اور بھیڑیا کود کر درخت پر چڑھنے لگا۔ تب کتا اور بلی وہاں پہنچے اور وہاں کسی کو بھی نہ پا کر وہ حیران زدہ رہ گئے۔ جنگلی سور بری طرح سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن وہ چھپ ہی نہیں پا رہا تھا، اس کا کان اب بھی نظر آ رہا تھا۔ جب بلی نے غور کیا تو سور نے اپنا کان ہلایا، بلی کو لگا کہ وہاں کوئی چوہا ہے اور وہ فوراً ہی اس پر کود پڑی۔ جنگلی سور بھاگنے لگا اور درد کے مارے خوب چیخنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، بھیڑیا اوپر ہے۔ کتے اور بلی نے اس درخت پر دیکھا تو انہیں بھیڑیا نظر آیا۔ وہ ڈرا ہونے کی وجہ سے وہ ڈرا ہوا تھا اور بے حد شرمندہ بھی تھا۔ پھر اس نے کتے کے ساتھ دوبارہ سے دوستی کر لی۔ پھر وہ تمام خوشی خوشی رہنے لگے، اور ایک روز ضعیف لیونارڈو اپنے مالک اور اس کی بیوی کی گود میں چین سے گزر گیا۔ کہانی ختم ہوئی۔ سازندہ۔ ایک زمانے میں ایک بہت ہی عمدہ سازندہ رہتا تھا جس کا نام اگستیو تھا۔ وہ اٹلی میں رہتا تھا۔ سارنگی بجانے میں استادی حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا گاؤں کا گھر چھوڑ دیا اور جنگلوں میں درختوں کے درمیان اپنا نیا گھر بسا لیا اور پھر بجانے لگا۔ بہت ہی کم وقت میں اس نے سارنگی بجانے میں استادی حاصل کر لی۔ سیٹی کی آواز سے لے کر ہوا پر ناچتی گھاس کی دھول بھی وہ بجا لیتا۔ اب وہ اپنے آپ کو ناظرین کے سامنے ثابت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بہت غور کیا، اور جب سوچنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا تو اس نے خود سے کہا، یہ تو بہت وقت لے رہا ہے، مجھے اپنے لیے ایک بہتر ساتھی کو تلاشنا چاہیے جس کے روبرو میں اپنی موسیقی سنا سکوں۔ پھر اس نے اپنی سارنگی کو تھاما اور اس سے بجانے لگا تاکہ اس کی دھن جنگل میں بھی سنائی دے، اور بہت جلد وہاں گھاس اور پتوں کی راہ سے نکل کر ایک بھیڑیا اس کے قریب پہنچا۔ یا خدا، بھیڑیا بچاؤ! لیکن بھیڑیا اس کے قریب آیا اور اسے کہنے لگا، او پیارے سازندے، تم کتنا اچھا بجا رہے ہو، کیا مجھے بھی سکھا دو گے؟ یہ سیکھنا تو بے حد آسان ہے، بس تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تم سے کہوں گا۔ ارے سازندے، میں تمہاری بات ویسے ہی مانوں گا جیسے شاگرد استاد کی مانتا ہے۔ سازندے نے بھیڑیے سے کہا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور دونوں ایک پرانے ببول کے درخت کے قریب آ کر رک گئے جو درمیان سے خالی اور ٹوٹا ہوا تھا۔ دیکھو، اگر تمہیں سارنگی سیکھنی ہے، ان دراروں میں اپنے پنجے پھنسا دو۔ بھیڑیے نے اس کا کہا مانا، لیکن سازندے نے فوراً ہی ایک پتھر اٹھایا اور ایک ہی وار میں اس کی پنجوں کو وہاں پر اٹکا دیا تاکہ وہ ایک قیدی کی طرح سے وہاں اٹک جائے۔ یوں ہی رہنا جب تک میں واپس آؤں۔ سازندے نے بس یہ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ وقت بعد اس نے پھر خود سے کہا، اوہ، یہ جنگل میں تو بہت وقت لگ رہا ہے، مجھے اپنا ہمنوا ڈھونڈنا ہوگا۔ اور پھر اس نے اپنی سارنگی کو اٹھایا اور بجانے لگا۔ فوراً ہی ایک لومڑی درختوں کے درمیان سے راستہ نکالتے ہوئے اس کی جانب پہنچی۔ ارے، ایک لومڑی میری جانب آ رہی ہے، یا خدا مدد کر! لومڑی اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، پیارے سازندے، کتنا خوبصورت بجا رہے ہو، مجھے بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی سکھا دو۔ بآسانی سیکھ جاؤ گے، بس تم میرا حکم مانتے جاؤ جو میں تم سے کہوں گا۔ سازندے نے کہا، اے سازندے، میں تمہاری بات اسی طرح مانوں گا جیسے کتا اپنی مالک کی مانتا ہے۔ بہتر، پیچھے آ۔ سازندے نے یہ کہا اور وہاں سے کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے راستے پر آیا جس کے دونوں جانب درخت تھے۔ وہاں سازندہ خاموش کھڑا رہا اور دوسری جانب سے اخروٹ کے درخت کے نیچے زمین تک خود کو جھکایا اور اس پر پیر رکھے، اور پھر اس نے دوسری طرف ایک چھوٹے سے درخت کی طرف خود کو جھکا کر کہا، ارے معصوم لومڑی، اگر تم کو سیکھنا چاہتی ہو تو اپنا دایاں پنجہ مجھے دو۔ لومڑی نے اس کا کہا مانا اور اس کا پنجہ بائیں درخت سے باندھ دیا۔ معصوم لومڑی، اب مجھے اپنا سیدھا پنجہ دو۔ پھر اس نے داہنے کی طرف باندھ دیا۔
پھر اس نے دیکھا کہ وہ مضبوطی سے بندھا ہے یا نہیں، اور اس نے درخت کو چھوڑ دیا۔ درخت اوپر اٹھا اور معصوم لومڑی درخت کے ساتھ اوپر ہوا میں لٹکنے لگی۔ جب تک میں واپس آؤں تم ایسے ہی رہنا۔ سازندے نے یہ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے پھر خود سے کہا، اس جنگل میں تو بہت ہی وقت لگ رہا ہے، مجھے دوسرا ساتھی ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ اور بس پھر سے اس نے اپنی سارنگی کو تھاما اور بجانے لگا تاکہ جنگل میں آواز گونج اٹھے۔ تبھی ایک معصوم خرگوش پدکتا ہوا اس کے قریب آ پہنچا۔ اوفو، ایک خرگوش آ رہا ہے۔ خرگوش سے دوستی کر کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کاش کہ وہ لوٹ جائے۔ پیارے سازندے، تم بے حد خوبصورت سارنگی بجاتے ہو، مجھے بھی سیکھنا ہے، میری بھی خواہش ہے۔ وہ تو تم آسانی سے سیکھ جاؤ گے، بس میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ ہاں سازندے، میں اسی طرح مانوں گا جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کی مانتا ہے۔ دونوں کافی فاصلے تک ساتھ ساتھ چلتے رہے جب تک وہ ایک کھلے میدان کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ وہاں ایک اسپن کا درخت تھا۔ سازندے نے ایک لمبی ڈوری خرگوش کے گلے میں باندھی اور اسے درخت سے باندھ دیا۔ چلو پیارے خرگوش، جلدی سے تیار ہو جاؤ، درخت کے 20 چکر لگاؤ۔ سازندے نے اسے حکم دیا اور معصوم خرگوش نے اسے مانا۔ اس نے 20 چکر لگائے جب تک ڈوری 20 دفعہ درخت سے لپٹ چکی تھی اور خرگوش اس میں اٹک چکا تھا۔ وہ اس میں اٹکتا ہی چلا گیا اور اس کی نازک سی گردن کٹ گئی۔ یہی ٹھہرنا جب تک میں واپس لوٹوں۔ سازندے نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اور اس طرف بھیڑیے نے خوب زور لگایا، کھینچا اور پتھر سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اور پھر وہ اس درخت سے باہر آ گیا۔ غصے اور نفرت سے وہ سازندے کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا تاکہ آگے بڑھ کر وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکے۔ لیکن جب لومڑی نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو زور سے اس نے اسے صدا دی اور کہنے لگی، بھیڑیے بھائی، میری مدد کرو، سازندے نے میرے ساتھ دغا کیا ہے۔ بھیڑیا درخت کی جانب بھاگا۔ اس نے رسی کاٹ کر لومڑی کو بھی آزاد کیا اور لومڑی بھی بدلہ لینے کے لیے بھیڑیے کے ساتھ ہی نکل پڑی۔ انہوں نے بندھے ہوئے خرگوش کو بھی دیکھا اور اسے آزاد کیا۔ اب تینوں ایک ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سازندہ جو راستے پر دوبارہ سے ساز بجاتا ہوا جا رہا تھا، اس کی قسمت ابھی بہت اچھی تھی۔ اس کی دھن ایک غریب لکڑہارے تک پہنچی جو فوراً ہی اس کی دھن پر مر مٹا۔ اس نے اپنے تمام کام چھوڑ دیے اور قریب ہی رکھی کلہاڑی کو لے کر وہ ساز سننے کے لیے آ گیا۔ آخر کار مجھے ایک صحیح ساتھی مل گیا۔ مجھے ایک انسان کی خواہش تھی، نہ کہ جنگلی جانور کی۔ اور وہ اتنی خوبصورتی سے اور نزاکت سے بجانے لگا کہ غریب آدمی مانو اسی میں کھو گیا۔ دل سے خوش ہو کر اس نے اس کی دھنیں سنی۔ تبھی وہاں پر بھیڑیا، لومڑی اور خرگوش پہنچ گئے۔ اس نے دیکھا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اسی لیے اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور سازندے کو اپنے پیچھے چھپا لیا، جیسے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جو کوئی بھی سازندے کو تکلیف دینا چاہتا ہے اسے پہلے مجھ سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ جنگلی جانور اس آدمی کی دھمکی سے فوراً ہی ڈر گئے اور جنگل کی جانب بھاگ گئے۔ سازندے نے شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک بار پھر سے لکڑہارے کے لیے ایک ساز بجایا اور اپنے راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ کہانی ختم ہوئی۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کسی انجان علاقے میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا، اتنا چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا۔ وہاں فصل کاٹنے کے بعد لوگ جشن منا رہے تھے، موسیقی کا عالم تھا، لوگ رقص کر رہے تھے، گا بجا رہے تھے۔ دیہات میں البرٹ نام کا ایک بے حد خوبصورت اور تندرست لڑکا تھا جس کے ساتھ رقص کرنے کے لیے لڑکیاں قطار میں کھڑی رہتی، لیکن دیر شام اس کی نظر ایک نئی لڑکی پر پڑی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام لوسی ہے۔ تم یہاں کی تو نہیں لگتی ہے نا؟ نہیں۔ پھر کہاں سے؟ بہت دور سے۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے،
लेकिन रात भर बिना रुके दोनों एक दूसरे के साथ नाचते रहे और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। शायद दोनों अब एक दूसरे को जानने लगे थे। लेकिन तभी बाहर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। मुझे जाना चाहिए। अभी ठहरो, मौसीकी अभी जारी है, चलो रक्स करें। अचानक कमरे के तमाम दरवाजे खुले और बादशाह के सिपाही तलवार और भाले लेकर अल्बर्ट और लूसी की जानिब बढ़ने लगे। फिर कमरे में मौजूद तमाम लोग नीचे झुक गए। ये क्या हो रहा है? अपने हाथ मेरी दुख्तर से दूर करो। सिपाहियों ने अल्बर्ट को लूसी से दूर किया और उसे जमीन पर डाल दिया और फिर उन्होंने अपनी तलवार और भाले उसकी जानिब बढ़ा दिए। अब्बा, उसे कुछ मत करिए। अल्बर्ट हैरान ज़दा था। बादशाह जॉर्ज तुम्हारे वालिद हैं? बादशाह जॉर्ज ने लूसी को जवाब देने का मौका तक नहीं दिया। उन्होंने अपनी उंगली बढ़ाई और कहा, तुम मेरी बेटी से दूर हट जाओ, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि एक काश्तकार से अपनी दुख्तर की शादी करूंगा? क्यों नहीं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। बेवकूफ लड़के, शहजादी की शादी किसी देहाती से नहीं होती। शहजादी किसी खानदानी, सिपाही या किसी रईस से शादी करती है। उसके बाद बादशाह जॉर्ज लूसी को खींचकर दरवाजे तक ले गए। बादशाह सलामत, अगर मैं दौलतमंद बन जाऊं तो क्या आप अपनी दुख्तर की शादी मुझसे करेंगे? बादशाह जॉर्ज वहीं रुक गए और उसकी जानिब घूमे। उन्होंने लम्हा भर के लिए सोचा और कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, पुराने किले की तिजोरी में खजाना है। अगर तुम वहां जाकर ताज के हीरे मुझे लाकर दे सको, बाकी का सारा खजाना तुम रख सकते हो, मेरी दुख्तर से शादी कर सकते हो। फिर तो मैं करूंगा। देखते हैं। फिर बादशाह जॉर्ज और शहजादी वहां से चले गए। कमरे में इस कदर खामोशी छा गई थी कि किसी ने आवाज भी नहीं की। तमाम अल्बर्ट को देखने लगे। हर कोई मुझे क्यों देख रहा है? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? क्या? तुम जानते हो बादशाह जॉर्ज ने पुराना किला क्यों छोड़ दिया था? क्यों? क्योंकि एक ड्रैगन ने वहां अपना मस्कन बनाया था। एक ड्रैगन? बादशाह मुझे क्यों भेजेंगे खजाना लाने अगर वहां एक ड्रैगन है? वो नहीं चाहते कि उनकी दुख्तर की शादी तुमसे हो। वो चाहते हैं ड्रैगन तुम्हें जला दे। अल्बर्ट दरवाजे की जानिब गया। फर्क नहीं पड़ता, मुझे लूसी पसंद है। मैं उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। हालांकि अल्बर्ट बहुत ज्यादा शातिर तो नहीं था, लेकिन उसका इरादा बेहद मजबूत था। अगले ही रोज अल्बर्ट पुराने किले की जानिब जाने लगा। फिर उसे समझ में आया कि वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं होने वाला। वो हजारों मील दूर था और रास्ते में खतरनाक बर्फीले दरिया भी थे। मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है। बर्फीले दरिया पार करते हुए वो ठंड से जैसे जम ही गया था। यकीनन अल्बर्ट ज्यादा शातिर नहीं था, लेकिन जब वो दरिया की दूसरी जानिब पहुंचा तो वहां से गिरा और वो गिरते 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 नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लगी। बर्फीले दरिया में गिरने तक उसकी आंखें नहीं खुली। जब अल्बर्ट को यकीन हुआ कि वो ठंड से डूबने या मरने वाला है, तभी बर्फीला दरिया यकबयक जोर जोर से बहने लगा। ओह नहीं, मेरी तलवार तो खो गई। अब ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है। अब उसका सामना कैसे करूंगा? चंद ही लम्हों के बाद वो तैरकर डूबने से बच गया और वो नजदीक के ही दूसरे किनारे पर तैरकर पहुंच गया और किनारे पर कूद गया। ओह, अब मैं देख सकता हूँ किले की ऊंची दीवार। उसे ड्रैगन की सांस से जली हुई घास नजर आई। यकबयक अल्बर्ट को ड्रैगन के बड़े पंखों के फड़फड़ाने की और उसके कदमों के रखने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे लकड़ी के पोले हिस्से में छुपना चाहिए। लकड़ी ने आग पकड़ ली थी, लेकिन अल्बर्ट को कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम उसे गर्माहट तो हासिल हो ही रही थी। मुझे ड्रैगन के पंखों की आवाज बंद होने तक यहीं रुकना चाहिए। लिहाजा वो उस पोली लकड़ी से बाहर की तरफ आया और उसे जलता हुआ देखने लगा और फिर सोचने लगा कि बिना तंदूर बने वो उस ड्रैगन को कैसे चकमा देकर खजाने तक पहुंच जाए। मुझे ड्रैगन का मस्कन
तलाश करना होगा। अरे वहां पर क्या है? वो तो एक तिजोरी है जहां बादशाह का खजाना छुपा है। अब अल्बर्ट करीब के ही एक मक्के के दहकान से एक पुतला ले आया। अंधेरी रात में वो पुतले को किले के अंदर ले गया और उसे खजाने के सामने वाली दीवार पर रख दिया ताकि ड्रैगन को वो बआसानी नजर आए। ये क्या है? एक टंकी? मैं इस टंकी के ढक्कन को काट कर ड्रैगन के जितने करीब हो सकता है ले जाऊंगा। अब उसने एक गुफा देखी और उसमें जाकर वो सो गया। अगली सुबह उसे तेजी से पैरों के रखने की आवाज आई। उसकी उम्मीद के मुताबिक जब ड्रैगन जागा तो उसे लगा कि किले की दीवार पर कोई पुतला नहीं बल्कि आदमी है। वो पुतले की जानिब बढ़ने लगा। हो, मैं अब ड्रैगन को नजर नहीं आ रहा। मैं जल्दी से टंकी से बाहर निकलूंगा और खजाने तक भाग जाऊंगा। दूसरी तरफ वो खजाने को गुफा तक ले गया जब तक पुतला तंदूर बन रहा था। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकला और बेतहाशा चीखने लगा, अरे ड्रैगन, इधर देखो, यहाँ आओ, मुझे पकड़ो। फकत इतना सुनकर ड्रैगन तेजी से उसकी जानिब मुड़ा और उड़कर उसकी तरफ आया जब तक अल्बर्ट उसकी नजरों से दूर हो चुका था। जब ड्रैगन ने आकर खजाने के दरवाजे में अपना सर अंदर डाला तब अल्बर्ट ने ड्रैगन का सर एक शय से ढक दिया। जब ड्रैगन ने अंगारे बरसाए तब उस शय में आग लग गई और वो ड्रैगन पर ही बरस गई और ड्रैगन ने अपने आप का ही तंदूर बना लिया। यकीन नहीं होता ये काम कर गया। अब मैं घर लौटूंगा और बादशाह से पूछूंगा क्या मैं शहजादी से शादी कर सकता हूँ। वो बादशाह जॉर्ज के दरबार में पहुंचा और उसने सिपाहियों को लकड़ी के संदूक में रखा हुआ खजाना लाने के लिए कहा। अल्बर्ट ने बादशाह को ताज के हीरे दिखाए। ओह, मैंने ड्रैगन को मार दिया और मैं अब बहुत दौलतमंद आदमी हूँ। और बस उसी लम्हे शहजादी लूसी ने कमरे में आकर अल्बर्ट को गले लगा लिया। शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया। तो बहुत शातिर न होने के बावजूद भी अल्बर्ट उस लड़की से शादी कर सका जिससे वो मोहब्बत करता था और उसे बहुत सारा खजाना मिला और वो तमाम हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। लोमड़ी और सारस। एक दफा एक जंगल में दो बहुत अच्छे लेकिन जरा अजीब दोस्त रहते थे। उनके नाम थे जनाब लोमड़ी और जनाब सारस। लोमड़ी बहुत ही शातिर था और सारस इतना अक्लमंद नहीं था। एक रोज लोमड़ी ने सारस को रात के खाने पर दावत दी। हमने कभी एक दूसरे को खाने की दावत ही नहीं दी। क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या पकाओगे? वो तो पोशीदा है। तो फिर मैं किस दिन और किस वक्त आऊं? कल शाम 7 बजे। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। कल मुलाकात करते हैं। हाँ, पर वक्त पर पहुंचना। हाँ हाँ बिल्कुल। अगले रोज सारस लोमड़ी के घर पर जा पहुंचता है। खुश आमदीद, आओ बैठो, खाना तैयार ही है। अरे जरा बताओ तो खाने में क्या पकाया है? मैंने लजीज सूप बनाया है, यकीनन तुम्हें बेहद पसंद आएगा। लेकिन जब सारस टेबल पर बैठा तो लोमड़ी ने सूप बहुत ही सादा सी प्लेट में पेश किया। क्या हुआ? मैं अपनी इस लंबी चोंच से कुछ खा ही नहीं पा रहा। अच्छा, ये मसला है, तो कम से कम तुम अपनी चोंच को उस प्लेट से भिगो लो। खैर छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। उम्मीद है कि कल तुम मेरे घर जरूर आओगे रात की दावत के लिए। क्यों नहीं, कल रात के बारे में क्या ख्याल है? मैं पहुंच जाऊंगा। उस शब सारस भूखा ही घर लौट आया। अगली शब लोमड़ी सारस के घर पर आई। आओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या पकाया है तुमने? तुम मेरे खास पसंदीदा मेहमान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है, लजीज सूप। क्या वाकई? बिल्कुल, आओ तशरीफ रखो, खाना बिल्कुल तैयार है। लेकिन लोमड़ी ये देखकर हैरान ज़दा हो गई कि सूप तो एक जार जैसी लंबी बोतल में रखा हुआ था जिसका मुंह बेहद छोटा सा था। सूप तो वाकई बहुत लजीज नजर आ रहा है मेरे दोस्त, लेकिन
मेरा मुंह जार के दरमियान तो पहुंच ही नहीं सकता। क्या वाकई? चलो तो तुम जार को बाहर से चाट सकते हो। अब लोमड़ी को सारस के इस रवैये पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो शातिर अंदाज में खामोश रही और उसने अच्छा सबक सिखाने की ठान ली। उसने कहा, ठीक है, हम दोबारा से शुरू करते हैं। कल तुम फिर से मेरे घर खाने पे क्यों नहीं आते? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, पर अब से खाने की प्लेट तुम्हें अपने खुद से लानी होगी। लिहाजा अगली ही शाम सारस लोमड़ी के घर खाने पर गया। कैसे हो दोस्त? तशरीफ रखो, खाना तकरीबन तैयार ही है। तो बताओ खाने में क्या बनाया है? लजीज सारस की खिचड़ी, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है। सारस। लेकिन सारस तो मैं ही हूं। जानता हूं मैं। और फिर लोमड़ी ने सारस का घर के बाहर और पहाड़ की चोटी तक पीछा किया और काफी फासले तक लोमड़ी ने सारस का पीछा किया और उससे पकड़ लिया। बहुत देर बाद लोमड़ी घर वापस आई। उसके मुंह में सारस के पंख दबे हुए थे। वो टेबल पर दराज हुई, रुमाल खोला और खिचड़ी का लुत्फ उठाने लगी। उसने सारस की खिचड़ी बड़े मजे से खाई। तो कहानी ये सबक देती है दोस्तों कि लोमड़ी के साथ लोमड़ी वाली चाल मत चलो। कहानी खत्म हुई। जैसे को तैसा। एक जमाने में चेस्टर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत दौलतमंद था, लेकिन बेहद कंजूस और मक्खी चूस भी था। उसके यहाँ एक नौकर थी, मैग्दा। अपने बचपन में चेस्टर इलाके का सबसे चुलबुला बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे ज़ईफ हुआ, उम्र बढ़ी, उसे चलने में परेशानी होने लगी। तो उसके वफादार नौकर ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीदे। आखिरकार चेस्टर एक रोज बाजार गया और 7 सोने के सिक्कों में एक खच्चर खरीद लाया। अब हुआ यूं कि 3 चोर भी बाजार में सैर कर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना पसंद था। उन्होंने जैसे ही चेस्टर को देखा कि उसने खच्चर खरीदा है, उनमें से एक ने अपने साथियों से कहा, मेरे दोस्त, ये खच्चर हमारा होना चाहिए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग जगह पर उस ज़ईफ के रास्ते पर इंतजार करेंगे और हर दफा बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो खच्चर नहीं गधा है। अगर हम अपनी दास्तान पर अड़े रहे तो वो खच्चर जल्द हमारा होगा। ये तरकीब सबको पसंद आई और तीनों अलग अलग जगहों पर उसका इंतजार करने के लिए खड़े हो गए। जब चेस्टर आया तो पहले चोर ने कहा, और जनाब, कैसे हैं आप? बस बेहतर, आपका शुक्रिया। और कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से। तो क्या खरीदा आपने? ये खच्चर। कौन सा खच्चर? जिस पर मैं बैठा हूँ। ओह, आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वाकई? जी, क्या मतलब? मुझे तो नजर आ रहा है आपने एक गधा खरीदा है, खच्चर नहीं। एक गधा? क्या बेतुकी बात है। और वो बगैर कुछ कहे अपनी राह पर आगे बढ़ गया। कुछ फासले बाद उसे दूसरा चोर मिला, जिसने उससे कहा, सुबह बखैर साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? बाजार से। क्या चीजें बहुत सस्ती हो गई वहाँ? हाँ, महसूस तो यही होता है। तो बताइए, आपने भी कोई अच्छा सौदा किया? मैंने तो ये खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हूँ। ओहो मियाँ, मेरे खुदा, ये तो एक गधा नजर आ रहा है। गधा? आप भी यही कह रहे हैं? और अगर एक शख्स ने और मुझसे ऐसा कहा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने सफर इख्तियार किया, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई, जिसने उससे कहा, सलाम जनाब, क्या आप बाजार की तरफ से आ रहे हैं? जी बेशक। तो फिर क्या खरीद लिया आपने वहां से? मैंने एक खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। एक खच्चर? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं खच्चर को लेके मजाक क्यों करूंगा?
अरे मेरे प्यारे हबीब, क्या तुम एक खच्चर और एक गधे के बीच फर्क नहीं बता सकते? गुजरे 2 घंटों में आप ये बात कहने वाले तीसरे शख्स हैं, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता। और खच्चर से उतरकर उसने कहा, आप संभाले इस जानवर को, मैं तो परेशान हो गया ये सौदा करके। होशियार चोरों ने जानवरों को अपने हमरा किया और उस पर सवार होकर अपने चोर दोस्तों के साथ मजे करने लगा, जबकि चेस्टर ने अपना सफर पैदल ही तय किया। जब ज़ईफ आदमी घर पर लौटा तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसने खच्चर समझकर एक गधे को खरीद लिया था, और उसने पूरा वाकया बयान किया। अरे मेरे आका, आपको तो मालूम ही नहीं हुआ कि आपके साथ कोई खेल हो गया है। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है, गुलचोर होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक बेहतर सबक सिखाऊंगा। चेस्टर 2 जुड़वा बकरियों को बहुत ही कम दामों पर खरीद कर लाया और उन्हें अपने साथ घर ले आया। उसने मैगदा को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ अपने हबीबों को खाने पर बुलाने वाला था। उसने गोश्त पकाने के लिए कहा, मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए कहा और बढ़िया सा केक भी बनाने के लिए कहा। फिर उसने एक बकरी को लिया और अपने दलान में उसे बांध दिया। फिर उसे खाने के लिए जरा घास दे दी और इसके बाद दूसरी बकरी को बाजार ले गया। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, तीनों चोरों ने उसे देखा और उसका इस्तकबाल किया। जनाब चेस्टर, आपका इस्तकबाल है। आप यहाँ कैसे? बस कुछ सामान खरीदने आया हूँ। चंद दोस्त रात के खाने पर तशरीफ ला रहे हैं और आप तीनों भी तशरीफ ले आएं तो 4 चांद लग जाएंगे। चोरों ने खुशी को दावत को कबूल किया और चेस्टर की खरीदारी होने के बाद उसने सब कुछ बकरी की कमर पर बांध दिया और तीनों बदमाशों के सामने बकरी से कहा, अब फौरन घर जाओ और मैगना से कहना कि गोश्त पकाए, बढ़िया मुर्ग बनाए और केक भी बनाए रात के खाने के लिए। अब फौरन दौड़ो, हम जल्द ही आ रहे हैं। जैसे ही उसने बकरी को खोला, वो तेजी से दौड़ी और चेस्टर तीनों बदमाशों के साथ जरा देर बाजार में ही तफरी करता रहा और फिर चारों चेस्टर के घर पहुँचे। जब वो अपने मेहमानों के हमरा घर के दालान में पहुँचा तो उसने देखा कि बकरी दालान में बंधी हुई चुपचाप घास खा रही है। वो हैरान ज़दा रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर चेस्टर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। जैसे ही वो घर पहुँचे, चेस्टर ने अपनी नौकरानी से कहा, तुम मैगदा, तुमने वो सब किया जो मैंने बकरी से कहलवाया था तुमसे? होशियार औरत अपने मालिक की बात समझकर बोली, जी हाँ बिल्कुल, गोश्त पक चुका है और मुर्ग मुसल्लम भी। चलो बहुत बेहतर। जब तीनों ही चोरों को पका हुआ गोश्त, बना हुआ केक दिखा और मैगदा की बात भी सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बकरी हासिल करने के लिए एक साथ तरकीब बनाई और आखिरकार खाना खत्म होने पर एक चोर ने चेस्टर से कहा, देखिए जनाब, आपको अपनी बकरी हमें फरोख्त करनी होगी। चेस्टर ने जवाब दिया, वो अपनी इस कीमती जानवर से बिछड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी कीमत उनका नुकसान नहीं भर सकती है। लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है। वो तो उस बकरी को 50 सोने के सिक्कों के बदले खरीद सकते हैं। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वहाँ से बकरी अपने साथ लेकर रवाना हो गए। घर पहुँचने पर उन्होंने अपनी बीवियों से कहा, कल शब का खाना मत बनाना जब तक हम कहलवाते नहीं। अगले ही रोज बाजार जाकर मुर्गियाँ खरीदी और बोलने वाली बकरी की कमर पर बांध दिया और उससे कहा कि खाने में क्या क्या चाहिए, और ये सब बेगमों को बताने के लिए कहा। बकरी को खोला और वो तेजी से दौड़ पड़ी। रात का खाने का वक्त जब हुआ तो तीनों अपने घर में दाखिल हुए और बेगमों को खाना देने के लिए कहा। तुम सब बेवकूफ हो, पागल हो? अरे ये कैसे सोच सकते हो कि बकरी इंसानों तक बातें पहुंचा सकती है? तुम लोगों के साथ जो भी हुआ है, जो लोगों के साथ किया है, उसका ही समर मिला है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. ख्वाहिश मुकम्मल करने वाला जादुई तालाब। एक ज़माने में जैस्मिन नाम की एक छोटी सी शहजादी रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बेहद बिगड़ैल थी, बेहद जिद्दी और मतलब परस्त थी और हमेशा लजीज खानों के लिए भूखी रहती थी। एक रोज बादशाह के दरबार में एक जादूगर आया।
اور ढेर सारी दुआओं के साथ साथ उसकी सल्तनत में मुकीम जादुई तालाब के बारे में भी उन्हें बताने लगा। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले तालाब के मुताल्लिक आपको आगाह करने वाला हूँ। बात यह है कि उसी दौरान छोटी सी जैस्मिन भी दरबार से होकर गुजर रही थी और उसने उस जादूगर को अपने वालिद मोहतरम से बातें करते हुए सुन लिया। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले जादुई तालाब के बारे में सुनकर वो बेहद खुश हो गई। तालाब के मुतालिक जादूगर की मुकम्मल बात सुनने से पहले ही वो अपने कमरे में चली गई। मुझे लजीज खाने की तलब के लिए जादुई तालाब के पास जाना ही होगा। अगले ही रोज जैस्मिन सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होकर जादुई तालाब की जानिब रवाना हो गई। दोपहर तक वो अपनी जेब में सुनहरी अशरफियाँ लिए जादुई तालाब तक पहुँच गई। वो खूब सारी चीजें मांगना चाहती थी, जैसे कि केक, आइसक्रीम, हैमबर्गर, पिज्जा, बिरयानी, चॉकलेट, बिस्किट और बहुत कुछ। लेकिन जब तालाब के करीब ही लिखी हुई एक तलकीन उसने पढ़ी तो वो बहुत उदास हो गई। एक शख्स की एक ही ख्वाहिश, जादुई तालाब कर दो ख्वाहिश पूरी, खाने से पूरे मटका दे दो, मेरी भूख है अधूरी। कि फौरन ही तालाब से एक मटका बाहर बरामद हुआ और एक सदा सुनाई दी, मुकम्मल कर दी ख्वाहिश जो चाही थी तुमने, लेकिन तलकीनों की पाबंद रहना जो हमने बनाई हैं। 3 जादुई अल्फाज जरूर दोहराना, डिंग डोंग ट्वैंग। जादुई मटका करेगा आगाज खाना बनाना, ख्वाहिश होगी मुकम्मल, भूख हो जाएगी पूरी, लेकिन फिर कहना रुक जा मटके रुक जा, वरना वो खाना बनाता ही रहेगा। बेहतर है यही होगा। जैस्मिन अपने महल में लौट आई। वो जादुई मटके के मुतालिक बहुत खुश थी और उसने जादुई अल्फाज कह दिए, डिंग डोंग ड्वेंग, मुझे चाहिए चॉकलेट केक कोको पुडिंग। कि फौरन ही जादुई मटके से चॉकलेट केक और पुडिंग की बारिश होने लगी। जास्मिन उस पर गिर पड़ी और फौरन ही भूखों की तरह उन्हें खाने लगी, जैसे उसे शदीद भूख लगी हो। रोज बरोज दिन गुजरते रहे और वो जादुई मटके से खाना हासिल करती रही, लिहाजा उसका वजन भी बहुत बढ़ गया। एक रोज बादशाह उससे मुलाकात के लिए आए और उन्होंने बहुत मोटी लड़की को मुर्गा खाते हुए देखा। बादशाह उसके करीब आए और करीब आने के बावजूद वो अपनी बेटी को नहीं पहचान सके। वो हैरान ज़दा रह गए और उन्होंने कहा, मेरी शहजादी, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया? अब्बा जान, गुजरे कुछ रोज पहले मैंने जादुई तालाब को एक तोहफा दिया था और खाना बनाने वाले मटके की दरियाफ्त की थी। कई रोज से मैं मटके से खाना मांग रही हूँ और गुज़िश्ता शब मैं मटके को रोकने वाले जादुई अल्फाज भूल गई। बादशाह को एहसास हो चुका था कि उनकी बेटी बहुत लालची खुदगर्ज है। उन्होंने रोती हुई शहजादी को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी शहजादी, तुम कभी किसी की बात को नहीं मानती। हालांकि मुझे मालूम है तुमने जादूगर को जादुई तालाब की बात कहते सुना है, लेकिन यकीनन तुमने मुकम्मल बात नहीं सुनी। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक जादुई तालाब के बारे में आपको आगाह करने आया हूँ। वो तालाब ख्वाहिशें तो मुकम्मल करता है, लेकिन उसके बाद कुछ यूं होता है। वो एक शैतानी तालाब है और उसे जल्द अज जल्द तबाह कर देने का मशवरा मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, अब क्या तुम्हें मालूम हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है? बादशाह ने अपने कारिंदों को भेजा और उन्हें हुक्म दिया, उस मटके को लो और राख कर दो। कारिंदों ने फौरन ही बादशाह की बात मानी और उस मटके को आग लगा दी और उसे पूरी तरह खत्म होकर राख होते हुए देखा। और उसके बाद शहजादी हर रोज कसरत करने लगी और बहुत ही जल्द वो पहले की तरह दुबली हो गई और फिर तमाम लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहानी सबक देती है, मुकम्मल बात जाने बगैर काम नहीं करना चाहिए। कहानी खत्म हुई। एक
जमाने में एक नौजवान मुसाफिर था जो पूरी दुनिया घूमने के लिए यहाँ वहाँ सफर करता था, क्योंकि उसे अलग अलग ममालिक देखने का शौक था। एक रोज जब वो चल रहा था तब उसे एक बक्सा हासिल हुआ। उसने बक्सा खोला और जादुई बक्सा उससे कहने लगा, तुम्हें क्या चाहिए? वो बहुत डर गया, लेकिन उसने बक्से को फेंका नहीं, बल्कि उसने उसे बंद किया और अपनी जेब में आहिस्ता से रख लिया। फिर वो आगे की जानिब बढ़ा और जैसे जैसे वो सफर करता गया उसने अपने आप से कहा, अगर बक्से ने मुझसे दोबारा दरियाफ्त किया कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे मालूम है कि उससे क्या मांगना है। इसीलिए उसने दोबारा जादुई बक्सा लिया और उसे खोला। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी टोपी सोने से भर दो। और फौरन ही उसकी टोपी में सोने के सिक्के भर गए। तो अब उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। वो आगे का सफर तय करता गया, करता गया, करता गया, घने जंगलों से, और आखिरकार एक खूबसूरत महल के सामने आकर पहुंचा। महल में एक बादशाह रहता था। नौजवान मुसाफिर महल के चक्कर लगा रहा था। बादशाह की नजर उसकी जानिब पड़ी तो उन्होंने उससे दरियाफ्त किया कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं सिर्फ आपका महल देख रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही महल चाहिए ना? नौजवान मुसाफिर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब सूरज गुरूब हुआ और शब आई तो उसने जादुई बक्सा खोल दिया। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे लिए एक महल बनाओ जिसकी दीवारें सोने की हों और ईंटें हीरे की और उसका सारा सामान सोने का हो। उसकी बात खत्म होते ही बिल्कुल बादशाह के महल के रूबरू एक दूसरा महल दराज हुआ, बिल्कुल वैसा जैसी उसकी ख्वाहिश थी। जब बादशाह नींद से बेदार हुआ तो इतना शानदार महल देखकर वो हैरान रह गया। वो महल आफताब की किरणों सा रोशन चमक रहा था। लिहाजा बादशाह नौजवान मुसाफिर से मुलाकात को गया। उसने मुसाफिर से कहा कि वो एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था और उम्मीद करता है कि वो दोनों साथ साथ रहेंगे, और बादशाह उसे अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत भी देगा। तो फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बादशाह चाहता था। नौजवान मुसाफिर की शहजादी से शादी हो गई और वो तमाम सोने के महल में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन बादशाह की बेगम नौजवान मुसाफिर और शहजादी से हसद करती थी। शहजादी ने अपनी अम्मी से जादुई बक्से के मुतालिक कहा जिसने उन्हें तमाम चीजें दी हैं, और मलका ने अपने नौकर को रिश्वत देकर जादुई बक्सा चुराने के लिए कहा। नौकर ने बहुत गौर से देखा हर शब बक्सा कहाँ रहता है। एक शाम उसने इंतजार किया और उसे चुराने की कोशिश की। जब तमाम लोग सो रहे थे तब नौकर ने बक्से को चोरी कर लिया और अपनी मालकिन के पास ले आया। मलका ने बक्से का ढक्कन खोला तो बक्से से आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए? सुर्ख समंदर के उस पार तक मुझे मेरे शौहर और मेरे नौकरों के साथ इस खूबसूरत महल के साथ ले चलो, लेकिन मेरी बेटी और उसके शौहर को पीछे छोड़ दो। जब शहजादी और उसके खाविंद की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को पुराने किले में पाया और जादुई बक्सा वहाँ से गायब था। नौजवान मुसाफिर घोड़ी पर सवार हुआ और अपनी जेब में जितने भी सोने के सिक्के भर सकता था उसने भर लिया और अपने आसपास के तमाम ममालिक में तलाश किया, लेकिन जादुई बक्सा कहीं नहीं मिला। बहुत जल्द उसकी तमाम दौलत खत्म हो गई, लेकिन वो आगे की जानिब सफर करता रहा जब तक उसका घोड़ा उसे ले जा सकता था। किसी ने उससे कहा कि उसे एक जिन की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जिन तो दूर तक सफर कर सकता है और शायद वो उसकी कुछ मदद भी कर पाए। इसीलिए वो बहुत दूर गया और जिन तक पहुंच गया। वहाँ उसे एक ज़ईफ खातून मिली जिसने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेटे? जिसे देखे वो उसे खा जाता है। तुम होशियार हो तो यहाँ से भाग जाओ और वापस मत लौट कर आना। लेकिन नौजवान ने उसे अपनी गमज़दा दास्तान सुनाई और कहा, शायद आपके बेटे ने सोने का वो महल देखा होगा। जब वो ये आखिरी बात कर रहा था तब जिन वहाँ पर आ पहुँचा और उसने कहा कि एक लजीज इंसान की खुशबू आई है और लगा कि खाना खाने का वक्त हो गया है। लेकिन उसकी अम्मी ने उसे समझाया कि इस मासूम ने तो अपना सब कुछ खो दिया है और वो इतना फासला तय करके तुम्हारी मदद के लिए आया है।
ضعیف عورت نے نوجوان سے کہا کہ تم بغیر ڈرے آگے آؤ اور اس کا سامنا کرو۔ وہ ہمت کے ساتھ جن کے سامنے آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا اس نے ایک سنہرا محل دیکھا ہے؟ تب جن نے کہا ہاں، میں نے وہ سنہرا محل دیکھا ہے اور اسے میں نے تہس نہس کرنے کی کوشش بھی کی تھی تاکہ میں اس کے اندر کے لوگوں کو کھا سکوں، لیکن محل اتنا مضبوط ہے کہ اندر نہیں جا سکا میں۔ تم مجھے اس کے بارے میں بتا دو۔ وہ تو بہت ہی دور ہے، سرخ سمندر کے کنارے پر۔ آخر اتنا سفر طے کرنے کے بعد نوجوان مسافر کو اپنا محل مل ہی گیا اور کسی طرح بہت مشقت کرنے کے بعد وہ سرخ سمندر کی جانب پہنچا۔ جب تک وہ محل میں پہنچا اس نے اپنے آپ کو ایک مالی کی صورت میں بدل دیا اور محل میں جا کر پوچھنے لگا کہ کیا انہیں مالی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب اسے کام پر رکھا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ وہ اپنا سارا وقت باقی کے نوکروں کے ساتھ اپنے مالکوں کی امیری کے بارے میں بات کرنے میں بتاتا۔ اس نے ایک نوکرانی سے اپنی دوستی بڑھائی اور اس سے جادوئی بکسے کے متعلق پوچھا اور اس نے معلوم کیا کیا وہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ ایک شام نوکرانی بکسا اٹھا کر اسے دکھانے کے لیے لے آئی اور جب نوکرانی نے بکسے کو بستر کے کونے میں چھپایا تو نوجوان نے وہ جگہ آہستہ سے دیکھ لی۔ اگلی شب جب تمام لوگ سو رہے تھے تب نوجوان خاموشی سے وہاں آیا اور اس نے جادوئی بکسا لیا اور اس نے خوشی کے ساتھ جادوئی بکسا کھولا۔ تب بکسے نے اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے اپنے محل میں جانا ہے، اپنی پرانی جگہ پر، اور میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ، ان کی ملکہ، تمام نوکر سرخ سمندر میں غرق ہو جائیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس نے اپنے آپ کو اپنی پرانی محل میں پایا اپنی بیگم کے ساتھ، جبکہ اس محل میں رہنے والے تمام لوگ سرخ سمندر کے اندر غرق ہو چکے تھے۔